Hi guys, good evening. Fantastic and rocking as usual. And with Forever, we always rock. So now don't want to take much time. You can see a lot of achievements, and I hope most of you all. Let me adjust my screen. Okay. Yeah, this looks perfect. Thanks a lot for coming, guys. And if you can just put on chat from which city you are. Just for example, I'm from Bombay, so I'll put Bombay. Yeah. Good evening, Mumbai. Okay, we have Bhushan, who's our new top motivation trainer from Mumbai. Okay, Vadodara. Wow. Bangalore, Ahmedabad. Lovely. Delhi. Wow. Good evening, everybody. Yeah. Come on. I mean, there, Delhi. Okay, good. कोल्हापुर कोल्हापुर वाह चलो सूखा मटन खाने आते हैं हम लोग कोल्हापुर and Hyderabad, wow, lovely. One of the best restaurants which I like in Hyderabad is the uh, Seven. It's called Seven State or something. Lovely restaurant. And we have Bihar. Wow, amazing. Okay, guys. So lovely, nice to see in a business where we can connect to so many people, not only in India but all over. Not only in Bombay, not only in Maharashtra, but all over. So the power of this is what? The power of this is you can also sponsor distributors anyway. Oh, we have somebody from Calcutta. So that is the interest. So that means when you want to sponsor people, it's not only in Mumbai or in your city. Remember, the full world is your playground. So you can do wonders. Okay. And Nanded. Okay. Wow. Superb. I mean, some of these places are amazing. I think I must visit one of these places. Unless you all invite me, I will come. I don't have a problem. But today I'm not the speaker. The speaker is a dynamo, and a lot of good memories with him because we spent a lot of time together. From Chennai, wow, lovely, great, welcome, welcome. So the idea behind this is the more why I told everyone put the name of the city. If so many people can join, imagine what you can do. So Mumbai is not your playground. Bangalore is not your playground. In Forever, the full world is your playground. Play wherever you want. And the best part, you don't have to pay anything. Imagine how you can do business. Caste, creed doesn't matter. Performance. Here, all those who perform will get the incentive, the setup. And incentives are tremendous. I mean, if you see the incentives that Forever gives, I don't think any other company gives. Somebody that day asked me a question, why Forever? I said, tell me why not. They asked me a question, why Forever? I said, tell me a reason why not. So I will not take, by the way, I'm not the speaker, board bada speaker. मैं तो छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा. So we will get the speaker. His name is Daman, and I have had the honor to spend time with him in Bali, and we went to a full north trip. I mean, he'll tell you that. तो थोड़ा उसके लिए भी छोड़ते हम लोग. हाँ. So अच्छा, somebody from Meda. Meda is lovely. Meda is one of the most nutrition doctor, and she has amazing knowledge. So everybody who wants Meda to come and give a training on nutrition, just type one. Just type one. Meda, you're seeing. I'm not saying anything. अभी देखो मेदा मैं क्या मैं तो एकदम सता सावत्रा ये देखो पब्लिक क्या दमन ऑल्सो सेइंग वन वाओ ओ माय गॉड मेदा से अभी मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकता राजीव माय गॉड राजीव ने भी अभी मैं क्या बोलूं ज्योति अरे माय गॉड वो भी so many ones are coming यार अभी मेदा मैंने कुछ नहीं बोला अभी you can see what is happening but that's another day so let's invite our rock star this guy was a player for IPL for Rajasthan Royals if I'm not mistaken yeah for Rajasthan Royals and today he's become a forever business entrepreneur so after the seminar ask him a lot of questions वो कुरकुर वाले क्वेश्चन भी पूछ लेना बिकॉज जब तक कुरकुर नहीं है जब तक मजा नहीं है okay so let's not waste time and Daman can we have you on screen please Hi, sir. hi First of hi all, thank wait you so much I'll for I'll I'll spotlight you yeah okay thank you so great much, sir, for a wonderful introduction, and thank you so much for giving me this opportunity. Daman That can I I can, ask you one question yeah, sure, sir. You can ask thousands of your hair questions, is looking total black थोड़ा एक भी white नहीं है and I sir, because think of you had a aloe vera. haircut today Because of aloe vera. Yeah, I had haircut today. but maybe I'm sure you had a haircut today
But you are also looking handsome, huh? I तो always look. You are my younger brother, no? See, you're looking awesome. अभी अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ. This is by Meda. अभी देख मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ. Yeah, so अभी first of all, thank you so much for giving me this opportunity that I can share a stage with you, share an online stage with you. And it's always my pleasure to like guide our whole team. And मैं जब भी like सेशन की जब शुरुआत होती है ना, तो मेरा एक सबसे पहला कंसर्न होता है दैट मुझे अपने लैपटॉप से बात करने में ना कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई मजा नहीं आता मुझे अपने लैपटॉप से बात करने में, ठीक है। और यहाँ पे आई एम डैम श्योर एवरीवन डू लव देमसेल्फ, राइट? हर किसी को खुद से प्यार है। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस लव योरसेल्फ? टाइप 1। कितनों को खुद से प्यार है? हाउ मेनी ऑफ यू? टाइप 1। सत्यजीत, आकृति, राकेश, मेधा मैम, मनीषा, गुनगुन, सुनीता, दैट्स अमेजिंग यार। देन व्हाई यू गाइस आर टर्निंग ऑफ योर कैमरा? यू लव योरसेल्फ, नो? मेकअप नहीं है. नहीं सर, लाइक वी नो वेल दैट हमारे फोरे के प्रोडक्ट्स इतने मार्वेलस हैं कि लाइक उनको ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है ना? दे लुक मोर अट्रैक्टिव देन ब्यूटी प्रोडक्ट्स if they consume like forever products. So I would like to request all of you to turn on your cameras because आपकी जो authenticity है ना, आपके चेहरे से दिखती है, ठीक है? और आपकी जो रियलिटी है वो आपके इमोशन से दिखती है, एंड योर फेस आर द वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ शोइंग योर एक्सप्रेशन, right? So I want all of you to turn on your cameras so that you can also interact with me because यार मैं लैपटॉप से बात नहीं करने आया, मैं आप लोगों से बात करने आया, मैं आप लोगों को गाइड करने आया, मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करने आया हूँ, ठीक है? So I want to turn on your camera, जल्दी फटाफट everyone turn on your camera, ठीक है? उसके साथ साथ आज शायद जो चीजें मेरी जो टीम है जो बहुत सालों से मेरे साथ काम कर रही है उनको भी जो चीजें नहीं पता है, शायद आज मैं फर्स्ट टाइम वो शेयर करने वाला हूँ। मे बी शायद कुछ चीजें साइमन सर को भी नहीं पता होंगे जो मैं शेयर करने वाला हूँ। सो टुडे इज गोइंग टू बी द जर्नी ऑफ माइंड जो मैंने पिछले 10 से 12 साल के अंदर प्ले करी है, ठीक है? सो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज आर एक्साइटेड टू सी दिस जर्नी? हाउ मेनी ऑफ यू? प्लीज टाइप 1। देखो हाथ है ना सबके पास, एवरीवन डू हैव हैंड्स, राइट? तो यूजलेस नहीं छोड़ना, ठीक है? यूजलेस नहीं छोड़ना, यूज करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? जैसे आप इंटरनेट को यूज करते हो ना यूजलेस चीजों के लिए, वैसे हैंड्स को यूजलेस मत छोड़ना, ठीक है? मेक इट यूजफुल। क्लियर? ओके, दैट्स ग्रेट यार। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन सो आई कैन गाइड you more better. Is my screen visible to all of you? Can you please type in chat box? Yes, yes. Okay, that's great. So first of all, thank you so much, Simon sir, for giving me this opportunity. And मेरी जो प्रोफेशन जो बैकग्राउंड रहा है वो मेरा स्टार्ट हुआ था इन 2012 2012 के अंदर, जब आप सबको याद है 2012 के अंदर एक रूमर फैला था कि दुनिया खत्म होने वाली है। दैट टाइम मेरी अरे you don't believe, Daman, sorry. One of my downline, I'll not tell his name, उसने भी मेरे को ये डायलॉग बोला। मैंने उसको क्या बोला मालूम है? खत्म हो रही है ना तेरा बैंक बैलेंस बैंक में मेरे नाम पे कर दे, ऐसे जाने वाला था। तो मैंने उसको बोला था, but I will tell you his name privately, not now in the group. Definitely, But sir. many people in Bombay know that. Right. So I used to be a like नॉर्मल लाइक अ बॉय, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। इवन मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत इवन लोअर मिडिल क्लास फैमिली का था। एंड मेरे स्टार्टिंग से हमेशा से ड्रीम थे कि मुझे लाइक एक क्रिकेटर बनना है, बिकॉज स्पोर्ट्स में मैं काफी अच्छा था। मेरा स्कूल जो था डीपीएस, उसमें लाइक काफी ज्यादा सपोर्ट किया जाता था क्रिकेट वगैरह को या फिर बाकी स्पोर्ट्स को। तो स्पोर्ट्स की जो जर्नी थी वो मेरे स्कूल क्रिकेट से स्टार्ट हुई थी। बिफोर दैट आई यूज्ड टू बी अ गोलकीपर इन माय फुटबॉल टीम, ठीक है? एंड लाइक काइंड ऑफ एक सेम जर्नी रही है एमएस धोनी की तरह, वो भी एक गोलकीपर थे फुटबॉल में। एंड सेम आई यूज्ड टू बी दैट गोलकीपर ऑफ माय फुटबॉल टीम। देन सडनली मेरी स्कूल की क्रिकेट टीम बनती है, उसमें जाके मैं ट्रायल देता हूँ एंड उसमें फाइनली मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ। एंड उसके बाद मेरे प्रोफेशनल क्रिकेट की शुरुआत होती है। पहले एज एन मतलब इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने में, बट जब पहली बार मैंने सीजन बॉल से क्रिकेट खेला तो एक बोलते हैं ना लाइक शेर के मुंह में खून लग जाता है। तो वो सेम चीज मेरे साथ हुई कि लाइक नहीं, मैंने डिसाइड किया दैट आई वांट टू टेक दिस क्रिकेट एज माय प्रोफेशन। सो स्कूल टाइम पे काफी अच्छा मैं क्रिकेट खेला, लाइक इंटर स्कूल खेला। देन उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट मैंने खेले, फिर डिस्ट्रिक्ट के बाद मैंने स्टेट लेवल पे हरियाणा को रिप्रेजेंट किया एंड हरियाणा से आई प्लेड ऑन अ गुड लेवल। देन एक यूजुअली होता है कि जब हम मिडिल क्लास फैमिली में ग्रो करते हैं तो पढ़ाई को एंड हमारी स्टडी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है।
तो मेरा भी कंसर्न यही था, लाइक 12th क्लास तक मैं स्टेट लेवल तो को रिप्रेजेंट कर चुका था अपनी क्रिकेट में, बट आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th जो सबसे बड़ा जो कंसर्न आया मेरी फैमिली का वो ये था कि लाइक मैं अपनी पढ़ाई को ज्यादा प्रेफरेंस दूं और मैं अपनी क्रिकेट को साइड में रखूं, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरी फैमिली का जो कंसर्न था बाकी सारी फैमिलीज की तरह या बाकी सारे पेरेंट्स की तरह वो यही था कि मैं अपनी पढ़ाई को ज्यादा सीरियसली लूं। तो मेरे मॉम डैडी का भी यही था कि लाइक मैं अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करूं एंड उसके बाद फिर मुझे जो करना है मैं कर सकता हूं, बट यूजुअली ये सिर्फ टाइम डिले करने के लिए होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है कि बाद में वो आपको जाके सपोर्ट करेंगे वो। तो फिर उनके प्रेशर में आके आई डिसाइडेड दैट मैं क्रिकेट को साइड में रखूंगा और क्रिकेट को साइड में रख के आई विल टेक माई एडमिशन इन एनी गुड यूनिवर्सिटी और मैं वहां से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगा। देन आई टूक एडमिशन इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, दैट इज एमिटी यूनिवर्सिटी। सो एमिटी यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने अपना एडमिशन लिया, मैंने अपने क्रिकेट करियर को साइड में रख दिया था, अपने किट बैग को लोक लगा के शोरूम में रख दिया था मैंने घर के, और उसके बाद मैंने सोचा था कि लाइक शायद मैं दोबारा कभी प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा। देन उसके बाद एमिटी यूनिवर्सिटी में मैं गया एंड एमिटी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद होटल मैनेजमेंट में मैंने एडमिशन लिया। मेरे कोर्स का नाम था BHMCT, जो 4 साल का कोर्स था। तो वहां पे जाके जब मैंने देखा कि लाइक मेरे यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम है, तो जब मैं उनको खेलता हुआ देखता तो बोलते हैं लाइक अंदर से खून बहुत गर्म होता था कि लाइक मैंने क्यों छोड़ा। तो फिर उसके बाद 1 साल मैंने अपनी पढ़ाई करी, अपने अच्छे से एग्जाम दिए, क्योंकि मेरा समझ स्टार्टिंग से एक कंसर्न रहा है कि मैं जो भी करता हूँ मैं बेस्ट करता हूँ, आई विल गिव माई 100%। तो पढ़ाई में भी आई गिव माई 100% एंड आई गुड गेन गुड मार्क्स ऑल्सो। देन फिर उसके बाद आफ्टर 1 ईयर वो बोलते हैं ना लाइक किस्मत आपको कहीं ना कहीं से आपको रोटेट करा के आपको एंड स्टेज पे लाके छोड़ देती हो, जो आपकी किस्मत में लिखा वो आपके पास कहीं ना कहीं से आपको डेफिनेटली आके मिलता है। सो फाइनली आफ्टर 1 ईयर आई गॉट अ कॉल फ्रॉम NCA, जो नेशनल हमारे कैंपिंग होती है, वहां से मुझे कॉल आया BCCI की तरफ से दैट यू गॉट सिलेक्टेड फॉर द नेशनल कैंप एंड यू हैव टू कम टू बैंगलोर। तो मुझे बैंगलोर जाना था अपने उसके लिए कैंपिंग के लिए। तो अब मैं क्रिकेट 1 साल से छोड़ चुका था, तो मुझे दोबारा प्रैक्टिस वगैरह करनी है, दोबारा मुझे अगर अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे प्रैक्टिस वगैरह दोबारा करनी पड़ी, जिसकी वजह से मैं शायद कॉलेज में नहीं जा पाता और शायद मैं अपने 1 साल मुझे ड्रॉप आउट करना पड़ता, 1 साल में एग्जाम वगैरह नहीं दे सकता था। तो आई वेंट टू माई HOD, जो मेरे डिपार्टमेंट के HOD थे, मैं उनके पास गया एंड उनसे मैंने पूछा कि सर लाइक मुझे आपका फेवर चाहिए एंड आई वॉन्ट टू लाइक प्ले क्रिकेट। तो मैं एग्जाम्स दूंगा बट शायद मैं 75% जो अटेंडेंस है मैं उसको शायद फुलफिल ना कर पाऊँ। तो मेरे जो डीन थे उन्होंने बोला, जो HOD थे उन्होंने बोला कि लाइक आई एम सॉरी, लाइक वी वोंट बी एबल टू सपोर्ट यू, अगर आपको एग्जाम देना है, वो पढ़ाई कंप्लीट करनी है अपनी, सो यू हैव टू कंप्लीट योर 75% अटेंडेंस। सो उस दिन बहुत सोच समझ लाइक बहुत मेरा दिमाग खराब हुआ था कि लाइक यार अब अभी मैं क्या करूं, है ना। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक चांस मिला, आई डोंट वांट टू लूज इट। सो मैं घर आया, घर आके मैंने अपने फादर से बात करी, पापा से बात करी, बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 साल 4 लाख रुपए की यूनिवर्सिटी में दे रहे हो तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज 4 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो 1 साल में मेरी 1 साल की फीस वो जा चुकी थी मेरी कॉलेज की। तो उसके बाद मैंने पापा को आके समझाया, मैंने बिठा के उनको बहुत प्यार से समझाया, ठीक है, और आई टोल्ड हिम कि पापा मुझे एक चांस मिला है अपने आप को शो करने का, और शायद अगर मैंने एक चांस गेन नहीं किया तो शायद मैं जिंदगी भर रिग्रेट फील करूंगा कि मुझे एक मौका मिला था अपनी ड्रीम को, अपने पैशन को फॉलो करने का, वो कहीं ना कहीं शायद मैंने मिस कर दिया। तो मेरे फादर जो थे उन्होंने थोड़ा सा मुझे सपोर्ट किया कि चलो ठीक है तेरे को खेलना है तू खेल, बट मेक श्योर दैट यू शुड बी सक्सेसफुल। तो उसके बाद मेरी क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई। आई वेंट टू बैंगलोर, वहां मैंने अच्छी परफॉर्मेंस करी। देन उसके बाद आई वेंट टू त्रिपुरा, वहां अच्छी परफॉर्मेंस हुई। एंड उसके बाद मेरा फिर सिलेक्शन होता है लाइक IPL कैंपिंग के अंदर इन 2017 और 18, ठीक है। एंड वहां पे मैंने लाइक राजस्थान रॉयल्स को रिप्रेजेंट किया एंड फाइनली उसके बाद आई गॉट अ चांस टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री, ठीक है। मलेशिया में 2018 इंटरनेशनल अंडर 19 वर्ल्ड कप के अंदर आई रिप्रेजेंटेड आर कंट्री। एंड उसके बाद मुझे भी कहीं ना कहीं ये होप थी कि शायद मैं भी जो हमारी मेन सीनियर टीम है उसको कहीं ना कहीं बहुत जल्दी मैं रिप्रेजेंट करूंगा एंड आई विल बी ऑन अ वेरी गुड लेवल, और शायद मैं भी अपनी लाइक वो बोलते हैं ना लाइक आपके चेस्ट पे इंडिया का फ्लैग लगा होगा, BCCI का फ्लैग लगा होगा, दैट विल बी द मोस्ट प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर मी, राइट। सो दैट टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे क्रिकेट में ही अपना करियर बिल्ड करना है, बट वो बोलते हैं कि लाइक जिंदगी आपको एक बार लाइफ में ठोकर जरूर मारती है, और वो ऐसी मारती है कि आपको संभलने में बहुत टाइम लगता है। सो 2019 आया, तो 2019 में आई मेट विद एन एक्सीडेंट, बट बिफोर दिस एक्सीडेंट मेरी जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था उस टाइम पे आई वेंट टू मिलिट्री आर्मी ट्रेनिंग ऑल्सो, ठीक है। मैंने 6 महीने की आर्मी ट्रेनिंग भी करी है उसके साथ साथ, बिकॉज मेरे मोम डैडी का कंसर्न ये था अगर मैं पढ़ाई कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, तो मैं आर्मी में भी जा सकता हूँ और मैं पुलिस को या आर्मी को मैं रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है। सो आई गॉट अ चांस एंड आर्मी की ट्रेनिंग भी मैंने कंप्लीट करी। देन उसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं क्रिकेट को कंप्लीट करूंगा, फॉलो करूंगा।
देन फाइनली 2019 आया, और आज भी मुझे दिन याद है। मैं अपना वर्कआउट करके अपनी जिम से बाहर निकल रहा था, मेरे पास रॉयल इनफील्ड बाइक थी। तो मैं जस्ट जिम से मैं बाहर निकला, और पीछे से एक बहुत तेज स्पीड में कार आती है, एंड उसने सीधी मेरे बाइक को टक्कर मारी। और थैंकफुली मैंने हेलमेट पहना हुआ था, तो आई डायरेक्टली गॉट स्टक इनटू द डिवाइडर। डिवाइडर में जाके सीधा मेरा सर लगा था, और उसके बाद आई एक्चुअली गॉट कंप्लीटली इनटू अ स्टेट के जहाँ पे मैं सेंसलेस हो चुका था। मैं मतलब मुझे होश ही नहीं था, ठीक है। और उसके बाद फिर मुझे 9 दिन, आई गेस 9 और 10 डेज के बाद शायद मुझे होश आया था, ठीक है। एंड मुझे पता चला था दैट फॉर द 7 days आई वाज इन कोमा ड्यू टू सो मच ब्लीडिंग फ्रॉम माई ब्रेन। आई गोट इन टू कोमा, एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, देयर वाज नो वन who came to take me to the hospital. People were making videos, people were clicking pictures, but ऐसा कोई इंसान नहीं था कि जो मुझे उठा के हॉस्पिटल लेके जा सके। थैंकफुली शायद मेरे अच्छे कर्म थे कुछ के, एक आर्मी की जिप्सी वहां से जा रही थी, उन्होंने मुझे उठाया और वो मुझे हॉस्पिटल तक लेके गए। देन उसके बाद 9 दिन बाद जब मुझे हो जाता, तो आई गो टू रियलाइज के लाइक मेरी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, और डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि लाइक इसको बचाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब इट्स नेक्स्ट टू सेव हिम, मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और मेरे मॉम डैड आई नो बहुत ज्यादा डर चुके थे, ठीक है। और मेरी तो हालत ही नहीं थी कि मैं खड़ा हो सकूं या कुछ भी मैं कर सकूं। आई वाज ऑन वेंटिलेटर। देन डॉक्टर्स ने ये बोला था कि जो मेरी फेशियल नर्व है वो मेरी ब्लॉक हो चुकी है, एंड जिसकी वजह से मेरा पूरा फेस पैरालाइज हो गया था, एंड जिसकी वजह से मेरा हार्ट जो था वो भी कम काम कर रहा था, और मेरा जो ब्रेन था वो एक्टिव नहीं था। मतलब बहुत सारी चीजें थी जो कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी उस टाइम पे। तो डॉक्टर ने 2 सिचुएशन बताई थी वहां पे। वो बोलते कि लाइक हम इसको बचाने का हम ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है लाइक दे ट्राई देयर बेस्ट टू सेव मी। तो मम्मी पापा जैसे बोलते हैं लाइक एक लौता मैं उनका लड़का, तो वो कुछ भी करेंगे मेरी जान बचाने के लिए, है ना। तो दे टॉक टू द डॉक्टर, एंड डॉक्टर ने बोला कि लाइक 2 ऑप्शन है जिससे कहीं ना कहीं मे भी हो सकता है, देयर आर सम चांसेस कि ये बच सकता है। तो पहला ऑप्शन ये था कि मेरी सर्जरी हो, और सर्जरी के लिए उनको ऑस्ट्रेलिया से कोई डॉक्टर कोई सर्जन उनको बुलाना पड़ता। एंड उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ था 2019 में, ठीक है। तो उसके बाद लाइक डॉक्टर बुलाना पड़ता, एंड जो पूरे ट्रीटमेंट का जो खर्चा वगैरह था दैट वाज एस्टिमेटेड मोर देन 2.5 CR, 2.5 करोड़ से ऊपर का पूरा खर्चा होने वाला था वो। अब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए शायद अगर वो जितना एम्पायर उन्होंने पूरी जिंदगी में बिल्ड किया है ना दिन रात मेहनत करके, वो अगर उसको सब कुछ बेच भी देता ना, तो भी शायद 2.5 करोड़ रुपए पूरे नहीं कर पाते वो। उनको कहीं ना कहीं से और कहीं से लोन वगैरह उनको उठाना पड़ता। एंड दूसरा कंसर्न ये था कि लाइक 8 महीने तक मैं स्टेरॉइड्स पे रहूं, मतलब मुझे इंसुलिन वगैरह वो प्रोवाइड करे, मेरी थेरेपीज वगैरह हो, एंड उसके बाद देयर इज ओनली 1% चांस कि शायद मैं हील हो सकूं, रिकवर हो सकूं। तो जो ऑपरेशन वाली लाइक कंसर्न था, उसमें डॉक्टर्स ने ये बोल दिया था कि लाइक देर इज 100% रिस्क के मे बी शायद ये ना बच पाए, ठीक है। सो वी प्रेफर कि आप है ना जो 8 महीने वाला टाइम है आप उसके ऊपर ज्यादा वो करो, इनिशिएट करो। बट उसमें भी मिनिमम से मिनिमम मेरे 1 से 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला था, बट वो ज्यादा लाइक बड़े से सेफ था थोड़ा सा। देन उसके बाद मॉम डैड ने डिसाइड किया कि हम थेरेपी के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो आफ्टर 1 मंथ लाइक 1 महीने तक मेरी कॉन्टिन्यूस थेरेपी वगैरह हुई, तो थोड़ा सा हल्का हल्का एक थोड़ा सा रिकवर होना स्टार्ट हुआ। देन थैंकफुली वन ऑफ माई फ्रेंड केम टू मीट मी। नॉर्मली जब दोस्तों पता चलता है तो हालचाल पूछने आते हैं, तो वन ऑफ माई फ्रेंड केम टू मीट मी, एंड उसके बाद वो मिलने आए। मिलने के बाद वो आए, एंड उन्होंने देखा कि लाइक सिचुएशन इतनी ज्यादा क्रिटिकल है। नेक्स्ट डे दे केम, एंड वो अपने साथ फोरे के 3 प्रोडक्ट्स लेके आए। वन इज एलोवेरा जेल, सेकंड वन इज RG+, एंड थर्ड वन इज आर्टिक सी, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट्स वो अपने साथ लेके आए थे, एंड दे टोल्ड माय मॉम कि आप इसको ये प्रोडक्ट्स यूज करो, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, किसी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये इसकी रिकवरी में हेल्प करेंगे बिकॉज दे आर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो मॉम डैड अभी इतना उस वो टाइम और वो पीरियड इतना ज्यादा क्रूशियल था कि वो कुछ भी मुझे ऐसे कंज्यूम नहीं करा सकते, दे हैव टू लाइक आस्क टू द डॉक्टर। तो डॉक्टर से जब उन्होंने पूछा तो डॉक्टर रिकमेंडेड के लाइक उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह देखे, सब कुछ देखा उसके ऊपर क्या इंग्रेडिएंट्स है और किस तरीके से यूज होता है। तो उन्होंने उस टाइम अलाउ किया कि लाइक इसके अंदर कोई मतलब कुछ ऐसा हार्मफुल केमिकल वगैरह या कुछ ऐसा पेस्टिसाइड या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है जो इसको लाइक हेल्थ में इसको इश्यूज क्रिएट कर सके। सो देन उसके बाद आई स्टार्टेड यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स, और शायद आप बिलीव नहीं करोगे, मे बी शायद आपको ट्रस्ट ना हो इस चीज के ऊपर, विद इन 2.5 months मैं अपने पैरों पे चल के घर आया था फ्रॉम हॉस्पिटल। अब मैं ये भी नहीं कहता कि वो सारा का सारा
मेडिकल ट्रीटमेंट का यूज था, और मैं ये भी नहीं कहता कि वो सारा सारा फोरेग के प्रोडक्ट्स का रिजल्ट था। दोनों ने अपनी जगह काम किया। न्यूट्रिशन ने शायद मेरी बॉडी को जल्दी रिकवर किया, और मेडिसिन ने भी शायद वही उतना ही काम किया मुझे हील करने में। सो ये थी मेरी जर्नी। देन उसके बाद व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल, तो वो टाइम मेरे लिए इतना ज्यादा क्रूशियल था, बिकॉज आई हैव सीन माय मॉम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड क्राइंग डे एंड नाइट कि मेरा बच्चा बस ठीक हो जाए। मतलब भगवान के सामने मेरी मम्मी हाथ जोड़ती थी कि मेरे बच्चे को बस ठीक कर दो, कैसे ना कैसे करके। आई एम सो सॉरी गाइस, आई हैव सीन दैट सिचुएशन। उसके बाद मैं बहुत डर गया था, और मेरे पास लाइफ में बैकअप प्लान नहीं था। मैं सब कुछ छोड़ चुका था। लिटरली मेरे हाथ कांपते हैं अभी। तो उसके बाद आई वाज लुकिंग फॉर अ बैकअप प्लान। तो मुझे पता चला जब मैं थोड़ा ठीक हो चुका था, तो मैं बैकअप प्लान एक ढूंढ रहा था अपनी लाइफ में कि मुझे लाइफ में एक आगे बढ़ना है, ग्रो करना है मुझे लाइफ में। मुझे फोरे के बारे में पता चला, तो जिस पर्सन ने मुझे फोरे के प्रोडक्ट्स लाके दिए थे, सो ही इंट्रोड्यूस मी विद दीज प्रोडक्ट्स, एंड ही इंट्रोड्यूस मी विद दिस बिजनेस ऑल्सो, वंडरफुल बिजनेस। तो पहला मेरा भी माइंडसेट ये था कि लाइक लोगों को जोड़ना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, लोगों के पीछे पड़ना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे। तो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इनटू दैट। देन उसके बाद मैंने बिजनेस को ढंग से समझा, अच्छे से समझा, नॉलेज ली मैंने, और जो मेरी मेंटलिटी थी वो थोड़ी सी चेंज हुई। एंड उसके बाद आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू डू दिस बिजनेस एंड आई हैव टू गेन कंप्लीट नॉलेज। तो 2 महीने लगाए, मैंने कंप्लीट नॉलेज ली मैंने इस बिजनेस के बारे में। एंड आई कंप्लीटेड माई 2 Cs इन 1 शॉट, बिकॉज प्रोडक्ट्स के ऊपर मेरा भरोसा था। तो प्रोडक्ट्स में लेके आया अपने घर के अंदर। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे चूज किए थे जो मेरी फैमिली को रिजल्ट दे सके। सो माई फादर वॉज डायबिटिक, माई मदर वॉज एक्चुअली हैविंग अर्थराइटिस पेन, जॉइंट का पेन होता था उनको, एंड मेरी बहन को थायराइड की प्रॉब्लम थी। तो वो तीनों प्रॉब्लम को कंसर्न में रख के मैं प्रोडक्ट्स लेके आया था। एंड उसके बाद मैंने मम्मी पापा को वो सारे प्रोडक्ट्स लाके यूज कराए थे, एंड दे गोट मेरिकल रिजल्ट्स। तो मेरे ट्रस्ट वहां से और ज्यादा बढ़ा। देन उसके बाद लॉकडाउन से पहले मैं इतना ज्यादा सीरियस नहीं था इस बिजनेस को लेके। मेरा ये था कि बैकअप प्लान है, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करूंगा। 2020 होता है, 2020 के अंदर होता है लॉकडाउन। लॉकडाउन जब होता है तो मुझे एक चीज रियलाइज होती है कि ये अभी 1-2 दिन का तो नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक ये चलने वाला है। देन फिर उसके बाद मैंने अपना पूरा ऑनलाइन सिस्टम मैंने बिल्ड किया, एंड आई वाज वर्किंग ऑन माय होल सिस्टम। एंड जिस पर्सन ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था इस बिजनेस के अंदर, तो उसके साथ मैंने बिजनेस कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। एंड आई गॉट माय फर्स्ट पे आउट इन जून 2020। जून 2020 के अंदर मेरा फर्स्ट पे आउट आया। एंड मेरी इंट्यूशन भी यही थी कि मुझे 18-20 हजार आ जाए मेरे लिए बहुत है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल इन दैट सिचुएशन कि जिनके पास अच्छी जॉब भी थी, उनके हाथ से उनकी जॉब जा रही थी। तो उस टाइम पे मेरे लिए 18-20 हजार में मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। देन फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट पे आउट आया, दैट वाज 25,000। थर्ड पे आउट आया 41,000। तो जो थर्ड पे आउट था 41,000 का, दैट वाज समथिंग कि जिसने मुझे लाइक बोलते हैं ना आपका दिमाग खोल देना, वो किया था उस पे आउट ने मेरे साथ। तो मुझे एक्चुअली रियलाइज हुआ था कि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत पोटेंशियल है। मैं शायद इसको लाइक उतना सीरियस नहीं ले पा रहा हूँ, या फिर मैं शायद इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैंने और ज्यादा फोकस के साथ, और ज्यादा मेहनत के साथ मैंने काम करना स्टार्ट किया। आई गोट माई फोर्थ पे आउट ऑफ 75,000 रुपीज। एंड फाइनली वो मंथ आया जिस महीने मैंने अपनी 6 फिगर इनको कंप्लीट किया। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दैट मंथ वाज माय बर्थडे मंथ। ठीक है, 14 अक्टूबर 2020 में मेरे अकाउंट में 1,01,01,000 समथिंग टीडीएस कट करने के बाद मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए थे। एंड दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। ठीक है। एंड उसके बाद फिर बिजनेस के अंदर मेरी सीरियसनेस और बढ़ी, मैथ मेरी और बढ़ी, काम करना स्टार्ट किया, टीम को गाइड करना स्टार्ट किया, टीम के अंदर लेवल्स अचीव हुए, एंड मल्टीपल लीडर्स मेरी टीम के अंदर क्रिएट हुए। देन 2022 आया, एंड 2022 के अंदर जो जिस पर्सन के साथ मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो उनका एक्चुअली माइंडसेट चेंज हो चुका था। उन्होंने अपनी कोई खुद की कोई कंपनी खोल दी थी। ठीक है, तो उनका फोकस उस चीज के ऊपर हो गया था। तो मेरी जो टीम थी, मेरी जो बनी बनाई मेरी पूरी टीम थी, मेरा जो पूरा बिजनेस था, वो मेरा वहां पे खत्म हो गया था। ठीक है। एंड बिकॉज मेरी जो पूरी टीम थी वो उस पर्सन के साथ वो कनेक्टेड थी, उस मेंटर के साथ कनेक्टेड थी, तो वो पूरी टीम वहां पे शिफ्ट हो गई थी। बिकॉज हमारी इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अर्ली सक्सेस पे ज्यादा फोकस करते हैं, हमें जल्दी पैसा कमाने में ज्यादा फोकस करते हैं इन कंपैरिजन टू फेस लाइक द एक्चुअल स्ट्रगल
जो एग्जैक्टली जो सक्सेस होती है उसको गेन करने पे फोकस नहीं होता, हमारा जल्दी पैसा कमाने पे फोकस होता है। सो वो जितने भी लोग थे वो वहां पे शिफ्ट हो गए, तो मेरी टीम वहां पे एग्जैक्टली बिल्कुल खत्म हो गई। आई वाज इनटू जीरो अगेन इन 2022। देन उसके बाद आई डिसाइडेड दैट आई विल बिल्ड माय बिजनेस बाय माय ओन। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बिकॉज आज तक मैं जो बनाऊं मैं अपनी मेहनत से बनाऊं, अपनी काबिलियत से बनाऊं, अपनी लर्निंग कैपेबिलिटी से बनाऊं और अपनी डेडिकेशन से बनाऊं। तो मुझे आगे भी किसी जरूरत नहीं है। मैं एक बार गिरा हूं, मैं पहले भी जीरो से बना था, मैं दोबारा भी जीरो से बनूंगा। ठीक है, बिकॉज मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ था। तो फिर उसके बाद आई स्टार्टेड माई जर्नी। देन उसके बाद दोबारा मैंने सिस्टम बिल्ड किया एंड दोबारा फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया एंड फाइनली आई गॉट अवार्ड ऑफ वन ऑफ द यंगेस्ट मिलीनियर इन फॉर एवर। एंड जिसमें मुझे डेडिकेशन मिली थी कि लाइक मुझे काम करना है, मुझे ग्रो करना है। एंड उसके बाद आई डिसाइडेड कि मुझे इस जर्नी को छोड़ना नहीं है। एंड दैट टाइम आई डिसाइडेड दैट जब तक मैं जिंदा हूं आई एम नॉट गोना क्विट फॉर एवर, नो मैटर व्हाट विल बी द सिचुएशन। बिकॉज आज अगर मैं जिंदा खड़ा हूं आई एम बिकॉज ऑफ फॉर एवर। ठीक है। एंड मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं खुद की कोई गाड़ी लूं। मेरा हमेशा से ड्रीम था कि लाइक मुझे ट्रैवल करना है, बिकॉज स्टार्टिंग से मैं आई एम अ ट्रैवल इंथुजियास्ट। मुझे ट्रैवल करने में बहुत मजा आता है, बहुत पसंद है मुझे ट्रैवल करना। बट पैसे उतने नहीं होते थे एक मिडिल क्लास फैमिली के पास कि मैं ट्रैवल कर सकूं। देन उसके बाद फॉर एवर को ज्वाइन किया एंड फॉर एवर के साथ मेरा अपनी जर्नी स्टार्ट जब करी, तो उसके बाद से 4 कंट्रीज के अंदर मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। मलेशिया, बाली, सिंगापुर, श्रीलंका, जो एक हर एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे की शायद ड्रीम डेस्टिनेशन होती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो ट्रिप थी ये मेरी ड्रीम डेस्टिनेशंस थी। ठीक है। एंड लास्ट ईयर वी वेंट टू बाली, आप सबने शायद देखा भी होगा, साइमन सर के साथ आई वेंट टू बाली एंड वी हैव मेट विद वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ फॉरएवर वर्ल्ड, रॉल्फ केप, डोमिनिक केप एंड जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके साथ मिले एंड उसके बाद कंपनी फाउंडर्स के साथ मिलने का चांस मिला। एंड दैट वाज द ट्रिप व्हेन आई रियलाइज के फॉरएवर इज नॉट जस्ट अ ब्रांड, इट्स अ विजन जो करोड़ों लोगों के दिमाग में है। एंड वो विजन को जब आप कंटिन्यू करते हो, जब आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हो, देन एक्चुअली यू विल रियलाइज के जिंदगी में आपके पास पाने के लिए बहुत कुछ है, बट आप उसके लिए बस एफर्ट नहीं डालते, आप उसको लेके शायद सीरियस उतना नहीं होते। सो उसके बाद लाइक मेरा ड्रीम था कि मैं लाइक गाड़ी लूंगा खुद की। ठीक है। एंड जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो आई कंसल्टेड विद माय फादर कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है। सो ही डिनाइड दैट टाइम, क्योंकि उनका भी एक मेन कंसर्न था कि लाइक ये सब फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, बिजनेस कुछ नहीं चलते, ये कंपनियां छोड़ के भाग जाती हैं। ठीक है, ये होता है वो होता है, ऐसी मेंटेलिटी थी उनकी। बट नॉलेज मैंने ली थी, डिसाइड मुझे करना था कि मुझे करना है नहीं करना। सो आई मेड माई ओन डिसीजन एंड I told you that मेरा जो फर्स्ट पे ऑफ था that was in June 2020, September 17 September 2021, within a year I gifted a 10 lakh rupees car to my dad just because of forever. और वो बहुत खुशी है कि अपने प्रभु पे इसने भी आए कर जाएंगे कर जाएंगे कर जाएंगे कर जाएंगे और 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा हम डर जाएंगे डर जाएंगे। Now I just want you guys to understand the potential of this industry. मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था इनिशियल फेज पे, बट आई मेड माई ओन डिसीजन बिकॉज मुझे पता था कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। और समटाइम्स सम डिसीजंस आर ऑलवेज ग्रेट, है ना। तो मेरा एक लाइफ का सबसे वंडरफुल डिसीजन था दैट आई चूज फॉर एवर, आई मेड माई डिसीजन दैट आई वांट टू वर्क विद फॉर एवर। मैंने वहां पे उस सिचुएशन को लेट डाउन नहीं किया, मैंने वहां से अपना बैक स्टेप नहीं लिया। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि लाइक वो किसी से कंसल्ट करते हैं, वो उनको कुछ नेगेटिव बोल देते हैं, बुरा बोल देते हैं, तो वो वहीं से वो बैकआउट कर जाते हैं। बट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि नो, बिजनेस मेरा है, लाइफ मेरी है, करियर मेरा है, पैसा मुझे कमाना है, तो डिसाइड मुझे करना है कि मुझे करना है या नहीं करना। सो आई डिसाइडेड एंड जस्ट आप इमेजिन करके देखो कि आपके फादर ने आपको किसी चीज को करने के लिए मना किया और उसी काम को करके जब आप उनको एक गाड़ी गिफ्ट करते हो, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग ही विल एग्जैक्टली फील दैट टाइम। और उनकी जो खुशी थी ना वो उनकी आंखों से निकल रही थी। ठीक है। सो दैट वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय करियर जो मैंने फॉर के साथ इनिशिएट करी है। एंड उसके बाद आई वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द यंगेस्ट मिलियनेयर इन फॉरएवर आल्सो। एंड उसके बाद सबसे बड़ी चीज मेरी इस जर्नी से
आई वॉन्ट टू गिव यू 5 lessons, 5 biggest lessons which I want you to understand. और मे बी शायद ये जो 5 लेसन है ये आपकी लाइफ के सबसे बड़े लेसन बन सकते हैं, बिकॉज ग्रोथ इज अबाउट लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर पीपल. अगर आप दूसरों की गलतियों सीखोगे तो आपकी गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे. सो ये 5 सबसे बड़े लेसन थे मेरी जर्नी के. वो ये सबसे पहला लेसन है, दैट इज मेक योर ओन डिसीजन. आपको करियर में कुछ भी करना है, अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है कि मैं सही कर रहा हूँ, डोंट लेट दैट अपॉर्चुनिटी गो. उस अपॉर्चुनिटी को अभी भी छोड़ना मत, उस अपॉर्चुनिटी को अभी भी हाथ से जाने मत देना, बिकॉज अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास आती है. ओनली सक्सेसफुल पीपल बिकेम सक्सेसफुल व्हाइल चूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी. अदरवाइज मोस्ट लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि आज नहीं कल करूंगा, 2 महीने बाद करूंगा, 3 महीने बाद करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा, एंड दैट टाइम नेवर केम. वो टाइम कभी लौट के वापस नहीं आता. ठीक है, सो मेक योर ओन डिसीजन. ठीक है. सेकेंडली, स्टार्ट लर्निंग. सीखना शुरू कर दो अभी से. ठीक है, अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है, अभी से सीखना शुरू कर दो. और लर्निंग में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, बिकॉज आपकी जो लर्निंग है वो आपकी नॉलेज बिल्ड करती है, और आपकी नॉलेज आपका बिजनेस बिल्ड करती है, और आपका बिजनेस आपका करियर बिल्ड करता है. ठीक है, और आपका करियर आपकी डेस्टिनी बिल्ड करता है. ठीक है, सो दीज ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड. ठीक है, लर्निंग से शुरुआत होगी, सीखने की जर्नी शुरुआत होगी, सीखने से लेके सिखाने तक की जर्नी आपको प्ले करनी है. अगर आपने ये जर्नी प्ले कर ली, इन दिस जर्नी यू विल कंप्लीट योर ड्रीम्स. सीखने से लेके सिखाने तक का काम करना है, बस इतना सिंपल बिजनेस है. देन उसके बाद पीपल कम एंड गो इन योर बिजनेस. ठीक है, आपके डाउनलाइंस अपलाइंस आएंगे जाएंगे चले जाएंगे. ठीक है, आपकी सीरियसनेस डिपेंड करती है कि आप बिजनेस को कितना सीरियसली बिल्ड करना चाहते हो. बहुत सारे डाउनलाइंस आए, बहुत सारे डाउनलाइंस गए, बहुत सारे मेंटोर्स आए, बहुत सारे मेंटोर्स गए, अपलाइन आया, अपलाइन गया, बट मुझे पता था मुझे क्या करना है. सो आई मेड माई ओन डिसीजन, आई मेड माई ओन करियर, एंड आई एम मेकिंग माई ओन लाइफ. ठीक है, सो डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन एनी डाउनलाइन और एनी मेंटोर. मेक योर ओन जर्नी. खुद उतना कैपेबल बनो कि तुम्हें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत ना पड़े. लंगड़े घोड़े बन के आप रेस नहीं जीत सकते. ठीक है, लंगड़ा घोड़ा कभी रेस नहीं जीतता है. सो डोंट मेक योर सेल्फ दैट लंगड़ा घोड़ा. ठीक है, मेक योर सेल्फ अ हॉर्स कि जो हर रेस को जीत सके. ठीक है, देन उसके बाद यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. 2 महीने रिजल्ट नहीं आएंगे, 3 महीने रिजल्ट नहीं आएंगे, 4 महीने रिजल्ट नहीं आएंगे, 6 महीने रिजल्ट नहीं आएंगे. ठीक है, बट योर एफर्ट्स आर नॉट वेस्टिंग. आपके एफर्ट्स खराब नहीं हो रहे हैं, आपके एफर्ट्स वहां पे खराब नहीं जा रहे हैं. बहुत लोग आएंगे आपको ना बोलेंगे, बहुत लोग आएंगे आपके साथ ज्वाइन करेंगे, आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू शुड बी कंसिस्टेंट. बिकॉज कामयाबी आपके पास चली के आएगी, आपको उसके लायक बनना है. जब तक लायक नहीं बनोगे आपके पास कुछ चल के नहीं आने वाला. ठीक है, देन उसके बाद वर्क फॉर योर ड्रीम्स. डोंट एवर वर्क फॉर योर बेसिक नेसेसिटीज और जस्ट फॉर योर सर्वाइवल. ठीक है, सर्वाइवल आज के टाइम में एक लेबर भी करता है, खाना वो भी खाता है, दिन में खाना आप भी खा रहे हो. तो डोंट वेस्ट योर होल लाइफ जस्ट फॉर अ सर्वाइवल. स्टार्ट वर्किंग फॉर योर ड्रीम्स. ठीक है, बिकॉज सपने आपके हैं. अगर आप देख सकते हो गौतम बुद्ध की मैंने बात बहुत अच्छी समझी अपनी लाइफ के अंदर. व्हाट यू कैन ड्रीम यू कैन अचीव. आप जो देख सकते हो, सोच सकते हो, आप वो बन सकते हो. यू जस्ट हैव टू बिलीव ऑन दैट. ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू गाइस डू बिलीव इन सन. सूरज के ऊपर कौन बिलीव करता है कि सूरज है? हाउ मेनी ऑफ यू? कैन यू प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स. करते हो आप? दैट्स ग्रेट यार. ओके, कभी सूरज पे गए हो आप? नहीं. स्टिल यू बिलीव बिकॉज यू फील द एनर्जी. एम आई राइट? आप चांद पे बिलीव करते हो? कभी गए हो चांद पे? नहीं. स्टिल यू बिलीव बिकॉज यू कैन सी द एनर्जी एंड यू फील द एनर्जी. राइट? आप काले धागे पे बिलीव करते होगे, है ना, कि बुरी नजर नहीं लगेगी. आप कलावे पे बिलीव करते होगे, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी. आप होरोस्कोप पे बिलीव करते होगे कि मेरी राशि ये है, मैं ये करूंगा तो मेरी लाइफ इस तरीके से बेटर होगी. आपकी टीवी स्क्रीन पे डेली सुबह 9 बजे हर न्यूज चैनल पे एक इंसान बैठा होता है जो आपको बताता है कि आपका दिन ऐसा जाएगा. राइट? आप बिलीव करते हो. आप अपने दोस्तों पे, रिश्तेदारों पे, अपने घर वालों पे बिलीव करते हो. राइट? आप हर एक उस चीज पे बिलीव करते हो जिसपे आप करना चाहते हो. राइट? और आपने हर एक चीज को बड़ा बना दिया है. राइट? जब खुद पे भरोसा करने की बारी आती है, खुद पे बिलीव करने की बारी आती है, कहां चले जाते हो? जब खुद पे ट्रस्ट करने की बारी आती है कि मैं कुछ कर सकता हूं, क्यों ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ नहीं कर पाया तो? व्हाट इफ मुझसे नहीं हुआ तो? व्हाट इफ मैं ग्रो नहीं कर पाया तो? व्हाट इफ मेरे साथ लोग कनेक्ट नहीं हुए तो? व्हाट इफ मेरे साथ लोगों ने टूसी नहीं किया तो? कंपनी 46 साल से करोड़ों लोगों की 2CC करा चुकी है 170 देशों के अंदर. अगर तुम नहीं कर रहे हो तो दैट इज योर लॉस. कंपनी का लॉस नहीं है, इंडस्ट्री का लॉस नहीं है. इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, कंपनी इज ग्रोइंग, एंड द पीपल हु आर वर्किंग विद फॉरएवर दे आर आल्सो ग्रोइंग. सो यू हैव टू मेक योर ओन डिसीजन. एंड खुद पे भरोसा नहीं है तो किस पे भरोसा करोगे?
सबसे बड़ी पावर जो आपकी है ना वो यहाँ पे छुपी है, एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल। एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। बचपन में जब हनुमान जी ने जब सूरज निकला था तो उनको एक श्राप दे दिया गया था कि वो दोबारा कभी बड़े नहीं हो पाएंगे, दोबारा कभी उड़ नहीं पाएंगे, और जब तक उनको कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक उनको ये सुपीरियर पावर उनकी याद नहीं आएंगी। जब समुद्र पार करना था, सिर्फ एक उनके अंदर ही पोटेंशियल था कि वो पूरे समुद्र को एक बार में पार कर सकते थे। तब जामवंत जी ने उनके कान में जाके बोला था कि हनुमान, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम उड़ भी सकते हो, तुम बड़े भी हो सकते हो, तुम छोटे भी हो सकते हो। तो एक भगवान होते हुए जब उनको अपना पोटेंशियल नहीं बताता, हम तो फिर भी इंसान है। हमें अपना पोटेंशियल तब रियलाइज होता है जब हम टफ सिचुएशन के अंदर होते हैं। तो उस सिचुएशन के आने का वेट मत करो, प्रिपेयर योर सेल्फ सो दैट यू कैन मेक दो सिचुएशन कंफर्टेबल फॉर योर सेल्फ। ठीक है, अदरवाइज अगर फ्यूचर में कभी कोविड जैसी सिचुएशन कभी दोबारा आ गई ना, दैट टाइम यू विल रियलाइज कि शायद अगर उस टाइम वो काम कर लेता तो आज मेरे पास एक लाइफ में एक करियर ऑप्शन होता जिसको मुझे शायद सीरियसली मैं करके, जिससे मैं शायद अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता, जिससे शायद मुझे करियर की टेंशन नहीं होती। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वांट टू थैंक माय ग्रेट मेंटोर मिस्टर साइमन डेविडसन। तो इनके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है, बिकॉज इज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था पूरे इंडिया में, एंड हु बिकेम द फर्स्ट मैनेजर ऑल ओवर इंडिया, एंड जो पिछले 24 साल से फॉरए के साथ काम कर रहे हैं, एथिकली काम कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट जब मैंने फॉरए की जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मैं आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। तो आई यूज्ड टू गो ऑन दिल्ली ऑफिस, जो हमारे दिल्ली में ऑफिस है, मैं वहां जाता था, और मैंने वहां पे इनका एक बहुत बड़ा एक फोटो देखा था फ्रेम में लगा हुआ, जिसमें इनके हाथ में चेयरमैन बोनस का पे आउट था। रेक्स मोन सर के साथ ये खड़े हुए थे। सो दैट टाइम आई गोट टू नो अबाउट हिम, और उससे मुझे रियलाइज हुआ कि ही इज द पर्सन जो शायद मेरी इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तो फिर जब मैंने इनके बारे में रिसर्च किया, जब मैंने इनके बारे में जाना, सो ही बिकेम माई इंस्पिरेशन। एंड मेरा हमेशा से ड्रीम था कि कभी मैं इनके साथ मिल पाऊंगा। एंड 2021 में मुझे एक फाइनली अपॉर्चुनिटी मिली। दिल्ली के अंदर इवेंट हुआ था फॉरएवर का, लीला होटल के अंदर। ठीक है, तो मुझे याद है, तो मैं वहां गया था, वहां मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिला था। एंड दैट वाज अ मोमेंट आई रियलाइज के एक इंसान चाहे कितना भी कामयाब बन जाए, उसको कभी अपनी रूट्स नहीं छोड़नी चाहिए। सो ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी पोलाइट, एंड आई एक्चुअली गॉट इंस्पायर फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी। देन फिर उसके बाद वी गॉट कनेक्टेड, एंड और इतने साल हो चुके हैं मुझे इनके साथ। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि he was very busy in his business and with his team, but whenever I call him, he always pick my call and he always guide me. ठीक है, तो वो कभी छोड़ते नहीं है मुझे। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट वी हैव बर्थडे ऑन द सेम डेट। 14 अक्टूबर का बर्थडे होता है, साइमन सर को भी 14 अक्टूबर का बर्थडे होता है, मेरा भी 14 अक्टूबर को बर्थडे होता है। सो कुछ क्वालिटीज है हमारी जो हमारी मैच करती है, और शायद यही क्वालिटीज या शायद यही इंट्यूशन हम एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट रखती है। सो दिस वॉज माई जर्नी, और ये बताने का सिर्फ रीजन आपको सिर्फ इतना था, आपके पास एक्सपीरियंस प्रीवियस क्या है मैटर नहीं करता, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है मैटर नहीं करता, आपके पास डिग्री कौन सी है मैटर नहीं करती, आप किस से निकले हो मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर इज दैट यू आर सीरियस अबाउट द लर्निंग एंड यू रियली वांट टू लुक फॉर द चेंज। ठीक है, अगर आप सीरियस हो, आप करना चाहते हो, आप हर चीज अचीव कर सकते हो। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान ने ना बनाई हो। ठीक है, एवरीथिंग इज मेड बाय द ह्यूमन बींग्स। इफ दे कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। ठीक है, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, तो दूसरों पे भरोसा कर सकते हो ना, खुद पे भरोसा करना स्टार्ट करो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर ड्रीम्स, इट्स ऑल अबाउट योर करियर, इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ। आज तुम्हारी लाइफ को तुम्हें सर्वाइव करने में, तुम्हारे करियर को बिल्ड करने में तुम्हें डिफिकल्टीज हो रही है। जस्ट डू इमेजिन नेक्स्ट 20 years when artificial intelligence will be on the peak, population will be on the peak, and jobs will be no more. What will you do? What will your upcoming generation will do? Think about that. Start building life right now. Start building your dreams right now. Don't wait for the right opportunity. Right opportunity आ गई आपके पास, but just don't waste your time. ठीक है, सक्सेसफुल बनना है, इनिशिएट करना स्टार्ट करो। एंड जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सब काम कर रहे हो ना, मैं सिर्फ आपको इतना बोल सकता हूँ, दैट इज अ प्रूवन मेथड, जिससे ऑलरेडी बहुत सारे लोग कामयाब बन चुके हैं, जिनसे आप, जिनकी सिचुएशन आपसे भी ज्यादा खराब थी, जिनकी सिचुएशन मुझसे भी ज्यादा खराब थी, वो आज मंथली लाखों लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे मेड अ डिसीजन, दे वांट टू डू इट, एंड दैट डिसीजन विल मेक योर लाइफ। सो दिस वाज माय जर्नी। आई विश आपने कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखा होगा। मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ
लाइक मुझे फॉरेन में 4 साल हो चुके हैं, बट स्टिल मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ कि शायद मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं. इट वाज जस्ट माय जर्नी जो शायद आपको कुछ ना कुछ लर्निंग दे सकती है, एंड विच विल हेल्प यू इन अपकमिंग योर जर्नी विद फॉरएवर. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. मुझे लाइक 40 मिनट्स तक झेलने के लिए थैंक यू सो मच. And thank you so much, Simon sir, for giving me this wonderful opportunity. And I really wish that everyone will grow. So thank you so much, Simon sir. I think your testimony was mind blowing, but you know क्या होता है कि the people who are there in the audience, maybe they have some questions. Yes, sir. So I would request we'll take 3 questions. Definitely, sir. Huh? But if Definitely. people want to ask 4 and more, then they'll have to pay. Sure, 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 sure. That's what other companies do. That's what other companies do. 3 free है, उसके बाद charge. Anyway, so if you have any questions for Daman, you can just type it. Keep the questions related to the business. Don't ask him if he's married or no. So let's keep it strictly to business. Come on. So How many to do? people, we have more सर एक than क्वेश्चन आया है, हाउ टू डू रिक्रूटिंग इफेक्टिवली ऑन लिंक्डइन. वेल, इसके लिए अगर साइमन सर मुझे अलाउ करेंगे तो आई विल टेक अ ब्रीफ सेशन दैट हाउ टू रिक्रूट पीपल फ्रॉम लिंक्डइन, एंड लिंक्डइन से कैसे आप बिजनेस को ग्रो कर सकते हो. बिकॉज दिस विल बी लाइक वेरी लेंथी थिंग जो मुझे शायद स्क्रीन वगैरह शेयर करके मुझे आपको दिखानी पड़ेगी. सो roughly will take 1 hour, 1.5 or 2 hours. या 1.5 hour will be enough. So we should do it in 2 parts or 1 part? We can do it in one part. 1 part, no? Yeah. So, but do you think the audience will stay for 1.5 hour? Sir, for sure. For sure. If they I are don't serious know. about their dreams. Audience type 1 if you want in 1 part, type 2 if you want in 2 parts. We are a democratic country. We are a democracy. 1 if you are, अरे वाह. देखा? Yes, done. 1. See, we work on democracy. That's nice. Okay, done. So we'll have a training on how to do LinkedIn, and we'll get Daman to do it. So maybe next week or next week sounds good. Definitely, sir. Whenever you say. And I think 9 o'clock is a good time. Yeah, definitely. Yeah, so I think that's fine. Any So- more questions, guys? Any more questions? कुछ भी क्वेश्चन है, लाइक वट एवर इट इज. लाइक मेरी पर्सनैलिटी ना भी साइमन सर की जैसी डेवलप होती जा रही है. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लाइक लिसनिंग क्वेश्चंस एंड गिविंग आंसर टू इट. ठीक है, नाउ आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग. ठीक है, विच अदर प्लेटफॉर्म टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स इफेक्टिवली. वेल, प्रोडक्ट्स आपको प्रमोट करना है, सो फर्स्ट मेक योर सेल्फ अ टेस्टिमनी. आप सबसे बड़े प्रमोटर होते हो, बिकॉज अ सेटिस्फाइड कंज्यूमर इज द बेस्ट प्रमोटर. ठीक है, तो आप अपने आप में खुद में एक सबसे बड़े प्रमोटर हो, आपको किसी और प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, मेक योर सेल्फ अ टेस्टिमनी, मेक योर फैमिली अ टेस्टिमनी, यूज द प्रोडक्ट, सी द रिजल्ट्स. ठीक है, एंड उसके बाद देन स्टार्ट शेयरिंग इट विद द पीपल. ठीक है, व्हाट प्रोडक्ट यू सजेस्ट फॉर स्पोर्ट्समैन. वेल, स्पोर्ट्समैन के लिए वी हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स. लाइक न्यूट्रिशन में तो लाइक वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स. वी हैव प्रोटीन आल्सो, वी हैव आर्टिक सी, वी हैव इम्यू ब्लैंड, बिकॉज मल्टीविटामिन की और लाइक ओमेगा 3 ओमेगा 9 की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है स्पोर्ट्समैन को. ठीक है, देन उसके साथ वी हैव आरजी प्लस, द स्पोर्ट्स ड्रिंक. ठीक है, बिकॉज एनर्जी आपको बहुत हाई रखनी होती है. देन उसके साथ साथ अभी रिसेंटली हमारी एनर्जी ड्रिंक भी लॉन्च हुई है, दैट इज एक्टिव बूस्ट, जो हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ. ठीक है, सो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जिनको आप यूज करोगे ना तो यू विल सी मिरेकल रिजल्ट. बिकॉज मैं आपके सामने जीती जागती टेस्टिमनी बैठा हूँ. मैं आज अगर अपने पैरों पे चल पा रहा हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ फॉरएवर. मैं अगर आज आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ फॉरएवर. मैं आज अगर आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ फॉरएवर. ठीक है, सो डोंट लेट दैट पॉइंट कम इन योर लाइफ के जहां आपको रिग्रेट फील हो कि शायद अगर उस टाइम वो प्रोडक्ट यूज कर लेता तो शायद आज मेरी फैमिली में ये इंसान मेरे साथ खड़ा होता. वो सिचुएशन सबसे ज्यादा पेनफुल होती है आपके लिए, बिकॉज आपने देखा होगा पीपल आर डाइंग जस्ट विद इन 5 seconds विद हार्ट अटैक. 18 साल के 20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है. क्यों? क्योंकि खाना पीना इतना खराब हो चुका है, न्यूट्रिशन बॉडी को मिल ही नहीं रहा है. आपकी बॉडी चल जाए न्यूट्रिशन पे. ठीक है, और अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेंगे तो आपकी बॉडी कैसे काम करेगी. सो गिव प्रॉपर न्यूट्रिशन टू योर बॉडी. एंड आपको पता है कि हमारे प्रोडक्ट्स कितना ज्यादा एफिशिएंट है. एंड द बेस्ट पार्ट इज किसी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक. ठीक है, सो कंटिन्यूअसली यूज करना. One session on objection handling. Sir, they are asking for a one session on objection handling also. Yeah, because मैं जब सिखाता हूँ लोग सुनते नहीं है, तो तू ही कर लेगा. मैं जितना, in fact yesterday I did a question answer round in the office, Okay. and we had an amazing time, and I don't know who all was present.
if you can pass a comment who were present yesterday, who were there for my training in the Forever office, where I handle only negative questions. And I told them, don't give me positive because I know what is positive. Only come out with negative. I think some people were present there. If anybody is, Rajiv was there. I don't know why Rajiv is not commenting. I think he's busy with his dinner. Yeah. So see, Yeah, Jayesh was there. So Jayesh, I'm not busy. No comment again. right. Yeah, Well, guys, don't worry, like, Shabana is a new one. Shabana, you tell me, how did you like the training yesterday, which we did, how to handle negative questions? Sorry, sir. Can you No, I'm asking Shabana. Shabana is here Okay. Okay. on the chat. Yes, attended. Yeah, so passed a comment now. गाली भी दे सकते हैं. We are okay. अच्छा, it was amazing. अभी choice नहीं ना, मैं सामने हूँ तो शायद amazing होगा. Right. So guys, I would like to request you one thing. ठीक है, एक मेरा पर्सनल एक टिप मैं दे सकता हूँ, मतलब मेरी पर्सनल प्रो टिप जिसको आप बोल सकते हो, मेरी जर्नी में जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है, वो ये थी कि लाइक मैंने कभी भी अपने ड्रीम्स को टारगेट नहीं किया. I always targeted my mom dad dreams because I've seen they have done a lot of sacrifice and compromise to make my life better. ठीक है, मुझे आज भी दिन याद है कि लाइक जब मुझे अपनी पहली क्रिकेट किट खरीदनी थी, उसकी वर्थ थी 10,000 और मेरे पापा की जेब में 10,000 रुपए नहीं थे. मेरे पापा की जेब में सिर्फ 2,000 रुपए थे. एंड नेक्स्ट डे वो अरेंज करके कहीं से लेके आए थे और उन्होंने मुझे क्रिकेट किट ला के दी थी. ठीक है, सो आई हैव सीन दैट सिचुएशन. अगर उन्होंने आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, आपके करियर को बेहतर बनाने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ना, उन्होंने अगर किसी और चीज के ऊपर फोकस नहीं किया और आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए दिन रात उन्होंने मेहनत करी है विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर कैपेबल टू कंप्लीट देयर ड्रीम्स. ठीक है, आज आपको अगर इतनी अच्छी जिंदगी मिली है, आपके सर के ऊपर छत है ना, आप बहुत खुशनसीब हो. बहुत लोगों के सर पे छत नहीं है. इट्स बिकॉज ऑफ योर मॉम डैड, इट्स बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स. राइट. ठीक है, तो मेक श्योर कि आप उनके ड्रीम्स पूरे करो, बिकॉज जब उनके सपने पूरे हो गए ना और उनके चेहरे पे जब आप खुशी देखोगे, दैट इज एक्चुअली योर सक्सेस लुक्स लाइक. सक्सेस को कभी किसी ने देखा नहीं है, दैट कैन बी फील. ठीक है, और जब आपके माँ बाप खुश होते हैं ना, तो वो आपकी सबसे बड़ी सक्सेस होती है. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आज सबसे पहले अपने मॉम डैड से एक बार बात करना, आस्क अबाउट देयर ड्रीम्स, आस्क अबाउट देयर गोल्स एंड स्टार्ट वर्किंग फॉर देम. ठीक है, 10 दिन लगे, 10 साल लगे, 10 जन्म लगे, करना तुम्हें ही है. ठीक है, और वो तुम ही करोगे, कोई और नहीं करने वाला. ठीक है, एक बार मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू. तो कैन यू गाइस प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास. क्या आप अपने कैमरास ऑन कर सकते हो? We can take it photo for the Instagram, no? यस. Teach एक बार them मुझे that. आप सब लोग, Teach them that, no? They want to learn social media, so ये भी सीख सका. राइट गाइस, आई वांट ऑल ऑफ यू टू टर्न ऑन योर कैमरास, जल्दी फटाफट. दैट्स नाइस यार. You all are looking very pretty, don't you know? Yeah, I'm आप not सब looking. इतने अच्छे दिख I'm रहे not हो. looking pretty. I'm looking handsome. You are तो like sir, don't na. See, Rajiv might be looking pretty. मेरी आप लोगों को एक नहीं पर्सनल सर, मैं तो आपको फॉलो करता हूँ ना. See, this is the charm of this forever business, that there is no discrimination. There is no discrimination about the levels, about the knowledge, or about the degree or qualification or any certain level. The best part about forever is that it's a family. It's not just only a business. ठीक है, यहाँ आपको family मिलती है. And I can proudly say this, that 70 people who are right now attending this meeting, they all became my family. ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा हो, so what you guys can do is like you can connect with me on Instagram, and एक चीज आप कर सकते हो, you can take a screenshot of this meeting, post it on your story, है ना, and जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा आप वो शेयर कर सकते हो. You can tag me also, you can tag Simon sir also, है ना, and I want to see your love. ठीक है, मैं तो आपको प्यार करता हूँ. I want to see your love. मुझे आपका प्यार देखना कि आप मुझे कितना प्यार करते हो. ठीक है, कैन यू गाइस डू इट? कर सकते हो आप ये चीज? अब ये बढ़ा सकते हैं ना 1 minute. I'll try to increase the people multiple. दैट्स ग्रेट यार. ये That's तो great. multiple यही हुआ. My Insta ID is Daman Saroha _ ठीक है, DAMANSAROHA _. Okay guys, now you अगर can आप take the साइमन photo. सर की उसमें जाओगे रिक्वेस्ट फॉलोइंग लिस्ट में, तो यू कैन फाइंड मी, डोंट वरी.
ठीक है, या फिर नॉर्मली दमन नाम सर्च करोगे, मेरा नाम ऐसा है कि लाइक आपको सबसे पहले मेरी प्रोफाइल ही दिखेगी। ठीक है, तो सर्च कर लेना दमन सरोवा, यू विल गेट माय प्रोफाइल। Okay, so thank you so much, guys, and thank you so much, Simon sir, for giving me this opportunity that I can share this experience with all team of Forever. And if I can do this, you are more capable than me. आप मुझसे बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगता है, आप मुझसे बहुत ज्यादा लाइक कैलिबर रखते हो। ठीक है, सो डू इट, डोंट स्टॉप। ठीक है, रुकना मत, अदरवाइज 40 साल बाद जब देखोगे ना अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के, और जब आपके सपने पूरे नहीं होंगे, रिग्रेट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। ठीक है, तो डोंट लेट दैट सिचुएशन कम, डोंट लेट दैट टाइम कम। ठीक है, सो साइमन सर, दिस इज ऑल फ्रॉम माय Yes. साइड, सो यू कैन। Sorry, you were saying my mistake. या You were saying something. Sorry, my mistake. नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग लाइक यू कैन कंटिन्यू। Yeah, because मैं ज़्यादा excited हो जाता हूँ. Okay, guys. What I want to say is one more thing is we have Medha here, we have Rajiv, we have Jayesh, and amazing people in the group. So thanks to all of you. The way that we can thank Daman is just by typing one. Just type one. That means he'll be very happy to know that he's. And we have Ganesh Patil, who's a Ayurvedic gold medalist. So अरे thanks amazing. Ganesh Patil, he's also there. So maybe next time we'll have a training with Ganesh Patil. He's an Ayurvedic gold specialist, and he's got such beautiful testimonies. Na? I mean, it's sometimes people say, तुमने पैसा दिया है क्या बोलने के लिए? वैसा है. So thanks a lot. I think we have all the questions. Just type one, guys. Wow. सर एवरीवन डू लव मी। नहीं, मैंने 2 टाइप किया. Ask me why. बिकॉज आई ऑल्सो लव यू ना। No, because I love you 2 times more. Remember, always have an answer ready. So anyway, guys, thanks a lot. Thanks, Daman. You have been amazing. सर इट्स माय And, प्लेजर। you know what is the best part of a meeting? We are not so serious. Like, एकदम joke मत करो, मस्ती मत करो, ये मत करो, वो मत करो. Total freedom. Well, imagine you're doing a business with freedom. And I would request everybody, start your own business on your own name. If you're single, double, doesn't matter. कल life में कुछ भी हुआ, you can survive with your own income and your own business. True. So all the best. And Daman, you have been amazing. But we'll have another training on LinkedIn. And maybe we'll have another training how to handle negative. Because मैं training जब देता हूँ ना इन लोगों को, उन लोग सब सुनते हैं, but एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाता है. I mean, let's stick to this both years. So I think maybe if you do a training, they'll like it more. नहीं But सर, after the training, I want them to give results now. See, बहुत simple सी के बाद चीज़ है। रिजल्ट वही टाइम पे 0 पे आउट होते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं. सर बहुत सिंपल सी चीज है, देखो जिसको कामयाब बनना है ना, वो कभी भी सीखना नहीं छोड़ेगा। जिसको सक्सेसफुल बनना है, वो कभी भी कंसिस्टेंसी लूज नहीं करेगा। और जिसको सच में अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं ना, वो कभी मेहनत करना नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये 3 क्वालिटीज है ना आपके अंदर, यू कैन बी सक्सेसफुल। और इनमें से अगर एक भी कम हुई ना, यू कैन नॉट बी। Fantastic. So guys, thanks a lot. We are not just on time, but before time. So that is again, they shows the discipline of a speaker. So it's been amazing. Hats off to you, Daman. थैंक All यू the सो best. मच सर। And as we have the same date of the birthday, I will Yes. come to your house because I am a good Jew. Definitely, sir, definitely. तो तेरे घर पे Anytime. आके मैं पार्टी करूंगा. Anytime, खर्चा भी sir. इससे कराऊंगा ना, same birthday. Done. I'll take you for a grand party. Chalo guys, thanks. Bye. See you all. Have Thank fun. you so much, guys. Thank you so much.